career in government جاسوسی، intelligence requires an appropriate level of violence. بہادری، پاکستانی کمانڈو کی ایک ایسی داستان And جو an دشمن کے aptitude گھر میں گھس کر اپنے وطن کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام بناتا رہا۔ غازی۔ میں نے اسے گھاس پر رکھ دیا۔ سانپ تیزی سے رینگتا درختوں کی طرف چلا گیا۔ اتنے میں مجھے جیپ کے انجن کی آواز سنائی دی۔ میرے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شاید عالمگیر خود جیپ لے کر آ گیا تھا۔ وہاں سے مجھے ریسٹ ہاؤس کا سامنے والا حصہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیپ سامنے والے حصے میں ہی آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور اس کا انجن بند ہو گیا تھا۔ میرے دل میں آیا کہ میں اٹھ کر ریسٹ ہاؤس کی طرف چلا جاؤں، لیکن پھر احتیاط کے خیال سے وہیں بیٹھا رہا۔ 10-15 منٹ کے بعد ڈھلان کے اوپر عالمگیر نمودار ہوا۔ اس نے کھڑے ہو کر اپنے دائیں بائیں دیکھا، پھر تیزی سے ڈھلان اتر کر بھٹوں کی طرف آ گیا۔ وہ بھٹوں کو دیکھنے لگا۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کہیں اس کے پیچھے کوئی خفیہ پولیس والا تو نہیں لگا ہوا۔ جب وہاں کوئی اجنبی مجھے نظر نہ آیا تو میں نے عالمگیر کو ذرا آواز دی۔ وہ میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا، پولیس تمہاری تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے۔ شیر باز کہاں ہے؟ کیا ہوا تھا؟ میں نے مختصر الفاظ میں اسے ساری داستان سنا دی۔ وہ کہنے لگا، مجھے یقین نہیں آتا کہ ایک سانپ نے تمہاری مدد کی ہو۔ سانپ تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو انسان کا دشمن ہے۔ میں نے کہا، اب وہ جنگل میں سیر کرنے گیا ہوا ہے، ابھی آئے گا تو تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ وہ میرا کتنا قابل اعتماد دوست ہے۔ وہ بولا، تمہیں یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، یہ جگہ یقینی طور پر خفیہ پولیس کی نگاہ میں ہے۔ پولیس میرے ہاتھ بھی آئی تھی۔ اگر میں یہاں کا پرانا سوشل ورکر نہ ہوتا اور میں نے اپنی ایک سماجی حیثیت نہ بنائی ہوتی اور سرکاری افسروں سے تعلقات نہ بنا کر رکھے ہوتے تو میں اس وقت جیل میں بند ہوتا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا پولیس کو پتہ چل گیا ہے کہ تمہارا ہم لوگوں سے رابطہ ہے؟ عالمگیر کہنے لگا، تم ان باتوں کو چھوڑو، میں نے سب کچھ اپنے حق میں رفع دفع کروا لیا ہے، مگر پولیس تمہیں شکتوں کی طرح تلاش کرتی پھر رہی ہے۔ میں اس وقت بھی لمبا چکر کاٹ کر ایک دوسرے راستے سے یہاں آیا ہوں اور زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا۔ میں نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا ساتھی کمانڈو شیر باز کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ مجھے یقینی رپورٹ ملنی چاہیے کہ وہ کس جگہ پر ہے تاکہ میں اس کو وہاں سے فرار کرانے کی کوئی سکیم بنا سکوں۔ عالمگیر کہنے لگا، سب سے پہلے تو تم یہاں سے نکل چلو۔ میں نے کہا، یہاں سے نکل کر کہاں جاؤں گا؟ جواب میں عالمگیر بولا، جہاں میں تمہیں لے جاؤں، بہرحال یہاں سے فوراً نکل چلو۔ میں نے کہا، مجھے اپنے سانپ دوست کا انتظار کرنا ہوگا۔ عالمگیر نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے میں نے کوئی احمقانہ بات کر دی ہو۔ وہ کہنے لگا، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اٹھو، میرے ساتھ آؤ، سانپ کو چھوڑو، اپنی جان بچانے کی کوشش کرو، کیونکہ اس بار اگر تم پکڑے گئے تو دشمن تمہیں چتا میں جلانے کی حماقت نہیں کرے گا، بلکہ تم اس وقت شوٹ کر دیے جاؤ گے۔ میں نے کہا، 1 منٹ ٹھہرو، میں سانپ کو آواز دیتا ہوں۔ وہ حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے ہونٹوں کو سکیڑ کر ایک خاص طریقے سے سیٹی کی آواز نکالی۔ یہ آواز میں نے 5-5 سیکنڈ کے وقفے سے 3 بار نکالی اور جدھر سانپ گیا تھا اس طرف دیکھنے لگا۔ عالمگیر بھی اس طرف دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں میرا دوست سانپ مجھے نظر آ گیا۔ وہ بڑی تیزی سے رینگتا ہوا میری طرف بڑا چلا آ رہا تھا۔ عالمگیر نے چھوٹے سے بھورے رنگ کے سانپ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو جلدی سے اٹھ کر پرے جا کھڑا ہوا۔ میں نے کہا، عالمگیر بھائی، گھبراؤ نہیں، یہ تم کو کچھ نہیں کہے گا۔ مگر عالمگیر ڈر کے مارے میرے قریب نہیں آتا تھا۔ میں اس کے سامنے سانپ کو اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا اور عالمگیر سے کہا، اب چلو، کہاں چلنا ہے؟ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جنگل میں وہاں سے اندر کی جانب کوئی 1 فرلانگ کے فاصلے پر لے گیا۔ وہاں زانگالو سیاہ چٹانوں کے درمیان ایک جھونپڑا نما لکڑی کا بوسیدہ کیبن بنا ہوا تھا۔ کہنے لگا، یہاں ہم کبھی تیار کیا ہوا کچا کوئلہ سٹور کیا کرتے تھے۔ جب سے میں نے کوئلے کا کام چھوڑا ہے یہاں کوئی نہیں آتا، سٹور خالی پڑا ہے، تم یہاں رہنا، عثمان بابا تمہیں آ کر کھانا وغیرہ دے جایا کرے گا۔ اس دوران میں اپنے خفیہ طریقے سے شیر باز کا پتہ چلاتا ہوں۔ میں تمہارے لیے شہر سے کچھ کپڑے اور کھانے کو بھی لایا ہوں جو جیپ میں ہی پڑا ہے، عثمان بابا ابھی تمہیں دے جائے گا۔ اب میں چلتا ہوں۔
खबरदार, यहाँ से इधर उधर मत जाना और होशियार रहना। आलमगीर चला गया। मैं वो सीधा कैबिन में आकर बैठ गया। कोने में अभी तक कोयले की कुछ बोरियां पड़ी हुई थीं। लकड़ी का फर्श गंदा हो रहा था। मैंने एक तरफ से फर्श को थोड़ा सा साफ किया और कैबिन के दरवाजे में एक तरफ होकर बाहर की तरफ देखने लगा। बाहर जंगल ही जंगल था। चट्टानें थीं, झाड़ियाँ थीं और ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। मैंने सांप को जेब से निकाल कर कहा, मेरे दोस्त, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे लिए दूध का इंतज़ाम नहीं कर सका। उस्मान बाबा आएगा तो इससे कहकर तुम्हारे लिए दूध मंगवा लूँगा। कोई 10-15 मिनट बाद उस्मान बाबा दरख्तों में से आता हुआ दिखाई दिया। इसने हाथ में थैला पकड़ा हुआ था। मेरे पास आकर बैठ गया। थैले में मेरे लिए केले के पत्तों में लिपटी हुई बिरयानी थी, पानी की एक बोतल थी, निस्वारी रंग की एक बुश शर्ट और इसी रंग की एक पुरानी सी ठंडी पतलून थी। मैंने सबसे पहले पुराने फटे हुए कपड़े उतार कर नए कपड़े पहने, खाना खाया, पानी पिया और उस्मान बाबा से कहा, बाबा मुझे एक बोतल दूध भर कर ला दो। उस्मान बाबा ने पूछा, दूध का क्या करेंगे? मैंने कहा, बस दूध पीने को जी चाहता है। वो कहने लगा, अच्छी बात है, मैं थोड़ी देर में चक्कर लगाऊंगा तो लेता आऊँगा। उस्मान बाबा चला गया। कोई आधे घंटे के बाद दूध की बोतल ले आया और कहने लगा, अब मैं रात को खाना लेकर ही आऊँगा। ये कुछ मोमबत्तियाँ और माचिस है, रात को ज़रूरत के वक्त रोशन कर लेना। इसके जाने के बाद मैंने सांप को कप में डालकर दूध पिलाया। सांप दूध पीकर मेरी जेब में वापस जाने की बजाय वहीं कोने में मज़े से बैठ गया। शाम हो गई। जंगल में अंधेरा उतरने लगा। दरख्तों पर बसेरा करते परिंदे शोर मचाने लगे। जैसे जैसे शाम गहरी होती गई, परिंदों का शोर कम होता गया। जब रात का अंधेरा छा गया तो जंगल पर खामोशी का राज हो गया। जंगल की इस खामोशी का मैं आदी हो चुका था। उस्मान बाबा मेरे लिए खाना लेकर आ गया। मैंने आलमगीर के बारे में पूछा तो वो कहने लगा, साहब दोबारा नहीं आए, इनका फ़ोन भी नहीं आया। मैंने पूछा, कोई अजनबी आदमी तो इधर उधर फिरता नज़र नहीं आया? उस्मान बाबा ने जवाब दिया, मैंने तो जंगल में किसी को नहीं देखा, यहाँ आते हुए भी बज़ाहिर कोई दिखाई नहीं दिया। उस्मान बाबा सुबह सुबह मेरे लिए चाय और नाश्ता लाने का कहकर पानी की बोतल लेकर चला गया। पानी से भरी हुई बोतल वो दिन के वक्त ही मेरे पास छोड़ गया था। अब जंगल की रात मेरे सामने थी। मच्छरों ने हमला शुरू कर दिया था। हैरानी की बात थी कि कल की रात भी जंगल में किसी शेर चीते की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। मैं आग रोशन नहीं कर सकता था, धूनी भी नहीं लगा सकता था ताकि मच्छरों से कुछ बचाव हो जाए। कैबिन के अंदर गर्मी थी और मच्छर बहुत ज़्यादा थे। कैबिन के बाहर भी मच्छर थे मगर गर्मी नहीं थी। मैं कैबिन के बाहर एक तरफ होकर लकड़ी के तख्ते पर लेट गया। ये तख्ता किसी कमरे का उखड़ा हुआ दरवाज़ा था। न जाने रात के किस लम्हे मेरी आंख लग गई। सुबह उठा तो सूरज नमूदार हो चुका था। दरख्तों पर परिंदे अल्लाह ताला की हम्दो सना के गीत गा रहे थे। मेरे बदन की दर्दें अब ठीक हो गई थीं। मैंने अपने दोस्त सांप को दूध पिलाया। कुछ देर इससे बातें करता रहा। इतने में उस्मान बाबा मेरे लिए नाश्ता और चाय लेकर आ गया। कहने लगा, मैं आपके लिए नाश्ता बना रहा था कि साहब जी का टेलीफोन आ गया। आलमगीर भाई का फ़ोन आया था। मैंने जल्दी से पूछा। हाँ, कह रहे थे कि हैदर अली को कह देना कि आज शाम अंधेरा होने के बाद किसी वक्त आऊँगा। मैं खुश हो गया। मुझे यकीन था कि आलमगीर ने शेरबाज का ज़रूर कुछ न कुछ सुराग लगा लिया होगा। मेरा दिन कैबिन के अंदर बैठे और किसी वक्त बाहर निकलकर दरख्तों के नीचे टहलते गुजर गया। शाम का वक्त हो गया। मुझे आलमगीर का बेचैनी से इंतज़ार था। जब शाम का अंधेरा गहरा हो गया तो आलमगीर भी आ गया। इसने आते ही पूछा, यहाँ कोई मशकूक आदमी तो तुम्हें नज़र नहीं आया? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। 2 दिन सिवाय उस्मान बाबा के और किसी इंसान की शक्ल तक नहीं देखी। तुम बताओ भाई, शेरबाज का कुछ पता चला? आलमगीर मेरे पास ही कैबिन के अंदर बैठ गया। कहने लगा, शेरबाज को मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले तुम्हारे फरार के बाद बेंगलोर के तारीखी किले वाले कैंप से निकालकर मुंडेल छावनी ले गए हैं। मैंने पूछा, ये मुंडेल छावनी कहाँ है? आलमगीर ने जवाब दिया, ये छावनी छतरी वाली पहाड़ी के ऊपर वाक़े है। अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ अंग्रेज़ी फ़ौज रहा करती थी। आजकल यहाँ पर गोला बारूद और दूसरे जंगी साजो सामान का ज़ख़ीरा जमा रहता है, जिसकी हिफाजत के लिए फ़ौज की एक प्लाटून हर वक्त मौजूद रहती है। यहाँ हुकूमत के मुखालिफ सियासी कैदियों को भी कैद में रखा जाता है। यहाँ पर टार्चर सेल भी हैं, जहाँ इन सियासी कैदियों को मुख्तलिफ अज़ीज़ें देकर इनसे हस्बे मंशा बयान लिखवाए जाते हैं।
छावनी का ये छोटा सा टीला दरियाए कृष्णा के किनारे पर है और यहाँ से जुनूब की तरफ इसका फासला 50-60 किलोमीटर है, लेकिन जंगल जंगल अगर जाएं तो आधा फासला रह जाता है। मैं सोच में पड़ गया। आलमगीर कहने लगा, तुम जरूर शेरबाज को वहां से निकालने के बारे में सोच रहे होगे, मगर इस ख्याल को भूल जाओ, क्योंकि छतरी वाली छावनी में जो कोई एक बार लाया जाता है तो फिर इसकी लाश भी बाहर नहीं निकलती। दूसरे वहां सिक्योरिटी का इंतजाम इतना सख्त है कि कोई चिड़िया भी फौज की इजाज़त के बगैर छावनी की हदूद में दाखिल नहीं हो सकती। मैंने आलमगीर की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया था। मैंने इससे पूछा, आलमगीर भाई, क्या तुम मुझे ये पता करवा कर बता सकते हो कि छतरी वाली छावनी में शेरबाज को किस जगह पर कैद रखा गया है? आलमगीर को बड़ा तज्जुब हुआ कि मैंने इसके इंतबाह पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया था। कुछ देर खामोश रहकर कहने लगा, इसके लिए तो अपने किसी खास जासूस को वहाँ भेजना पड़ेगा। मैंने कहा, वो कितना वक्त लगाएगा? क्योंकि मैं शेरबाज को वहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकाल कर लाना चाहता था। कोई पता नहीं भारतीय फौजी इसे कब मौत की नींद सुला दें। आलमगीर ने फौरन मेरे सवाल का जवाब ना दिया। 10-15 मिनट खामोश बैठा सोचता रहा, फिर मेरी तरफ मुतवज्जा होकर बोला, तुम मुझे 2 दिन की मोहलत दे दो। मेरा ख्याल है इन 2 दिनों में अपना आदमी ये सुराग भी लगा लेगा। मैंने कहा, खुदा करे इन 2 दिनों में शेरबाज को कुछ ना हुआ हो, लेकिन आलमगीर भाई, इससे ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। आलमगीर चला गया। इसके बाद मुझे 2 दिन गुजारने क़यामत बन गए। ये बड़ी गनीमत की बात थी कि इस दौरान वहाँ कोई खुफिया पुलिस वाला ना आया। उस्मान बाबा मुझे बराबर मुंह अंधेरे और शाम के वक्त खाना वगैरह पहुंचाता रहा। मेरे दोस्त सांप के वास्ते दूध भी मिलता रहा। आखिर किसी न किसी तरह वो 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन उस्मान बाबा नाश्ता लेकर आया तो इसने खुशखबरी दी कि आलमगीर भाई आज शाम को आ रहा है। मैं बेचैनी से इसका इंतजार करने लगा। शाम जरा गहरी हुई तो आलमगीर दरख्तों में से गुजरकर कैबिन की तरफ आता दिखाई दिया। मैं कैबिन के बाहर ही बैठा था। इसके आते ही मैंने पूछा, कुछ कामयाबी हुई? आलमगीर मेरे पास बैठते हुए बोला, यहाँ जो अपने आदमी काम कर रहे हैं वो बड़े जांबाज हैं और अपनी जान खतरे में डालकर भी राज मालूम करके ले आते हैं। फिर क्या पता चला? पता ये चला है, आलमगीर ने सांस दुरुस्त करते हुए कहा, कि छतरी वाली छावनी के टीले के ऊपर 7-7 3 कोठड़ियां बनी हुई हैं। इन कोठड़ियों में एक कोठड़ी में कमांडो शेरबाज कैद है। वहां सिक्योरिटी की क्या पोजीशन है? मेरे सवाल पर आलमगीर कहने लगा, भाई, फौजी छावनियों में वैसे भी सिक्योरिटी बड़ी सख्त होती है और ये तो ऐसी छावनी है कि जहां भारतीय हुकूमत अपने खतरनाक सियासी कैदियों और जासूसों को कैदी बनाकर रखती है। यहाँ तो सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा सख्त होगी। वैसे जितना कुछ हमारा जासूस मालूम कर सका है, इसकी रोशनी में मालूम हुआ है कि टीले पर वाक़ छावनी की तरफ किसी सिविलियन को जाने की इजाज़त नहीं है। कोई मकामी गुज्जर या सब्जी फरोश दूध या सब्जी वगैरह लेकर ऊपर नहीं जा सकता। वहाँ पर मुकीम फौजियों के लिए राशन फौजी ट्रक लेकर आता है। छावनी के गिर्द पत्थर की मजबूत 4 दीवारी ऊपर तक की गई है। चारों कोनों पर 4 ऊंचे वाच टावर बनाए हैं, जहां से हर वक्त सर्च लाइट की रोशनियां दीवारों पर पड़ती रहती हैं। ये रोशनी इतनी तेज होती है कि अगर दीवार पर कोई मक्खी भी बैठे तो वाच टावर के गार्ड को नजर आ जाती है। जिस तरफ कैदियों की कोठड़ियां हैं, इनकी पिछली दीवार टीले से नीचे घाटी तक बिल्कुल सीधी चट्टान की तरह चली आती है। यानी अगर कोई चाहे तो रस्सी की मदद से भी ऊपर नहीं चढ़ सकता। अगर चढ़ने की कोशिश भी करे तो वाच टावर के संतरी इसे सर्च लाइट की रोशनी में बड़ी आसानी से देख लेंगे और मशीन गन के एक ही ब्रस्ट से इसका काम तमाम कर देंगे। आलमगीर मुझे बड़ी मायूस कुन बातें सुना रहा था, मगर मेरा खुदा जानता था कि मैं मायूस नहीं था। ये अजीब बात है कि मैं कभी मायूस नहीं हुआ था। मुझे एक तो खुदा पर हमेशा भरोसा रहा है कि अगर आदमी की नीयत नेक है, इसकी अकल ठिकाने है और इसका मिशन हुब्बुल वतनी का मिशन है और इसके इरादे मजबूत हैं, तो फिर इसकी कामयाबी यकीनी है। इस वक्त भी जब हमारा मुजाहिद साथी आलमगीर मुझे छतरी वाली छावनी की नाकाबिले शिकस्त सिक्योरिटी का हाल सुना रहा था, तो मेरा दिल मुझे कह रहा था कि हैदर अली, अपने दिल को मजबूत रखो और अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ो। दुश्मन चाहे छावनी में तोपें लगा दे, तुम अपने गाजी साथी शेरबाज को निकालने में ज़रूर कामयाब हो जाओगे। मैंने आलमगीर से पूछा कि टीले के पीछे जो दरिया बहता है वो टीले से कितने फासले पर है। इसके जवाब में आलमगीर बोला, दरिया टीले के जनूब मशरकी सिमत बिल्कुल साथ ही बहता है। टीले की ढलान और दरिया के दरमियान थोड़ा सा फासला है,
जहां जंगली झाड़ियां और सरकंडे हैं। मैंने अपने आप को इस मिशन के लिए तैयार तो कर लिया था, मगर मुझे अपनी इस कमजोरी का एहसास था कि मुंडेल छावनी का इलाका मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। मुझे वहां किसी ऐसी जगह की ज़रूरत थी जिसको मैं अपना खुफिया ठिकाना बनाकर छावनी वाले टीले का सर्वे कर सकूं। इसके अलावा मुझे वहां किसी ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो ख़ास भरोसे का आदमी हो और मिशन में मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत हो वो मुझे फराहम कर सके। मैं तो वहाँ किसी को जानता तक नहीं था और मेरा मिशन इंतहाई खुफिया और ख़तरनाक था। मैं इस बारे में खुद किसी अजनबी शख्स को एतमाद में नहीं ले सकता था। जब मैंने अपनी इस तशवीश का आलमगीर से इजहार किया तो वो कहने लगा, मुझे पहले ही इस हकीकत का एहसास था कि अकेले इस मिशन में तुम्हें बहुत सी मुश्किलात पेश आ सकती हैं, बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसका हल मैंने तलाश कर रखा है। इसने बताया कि बेंगलोर से एक आदमी मेरे साथ मुंडेल छावनी जाएगा जो मुझे वहां मुंडेल कस्बे के एक आदमी से मिलाएगा। वो आदमी भी अपना ख़ास मुजाहिद और तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए वहां बैठा खामोशी से अपना काम कर रहा है। वो मुजाहिदीन को मुंडेल छावनी से कश्मीर के भारतीय फौजी यूनिटों को सप्लाई किए जाने वाले असले से बाखबर रखता है। ये सुनकर मुझे काफ़ी हद तक इत्मीनान हुआ। आलमगीर कहने लगा, तुम्हें इस मिशन के लिए जिस किस्म के असले की ज़रूरत होगी मुंडेल छावनी वाला मुजाहिद तुम्हें वो असला मुहैया कर देगा। मैंने इस आदमी के बारे में जब आलमगीर से पूछा कि इसका नाम क्या है और वो छावनी के कस्बे में क्या काम करता है, तो इसने मुझे इसका नाम भी बता दिया और ये भी बता दिया कि वहाँ क्या काम करता है। मैं आपको अपने इस मुजाहिद का असली नाम नहीं बताऊंगा, ये भी नहीं बताऊंगा कि वो वहाँ किस किस्म की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। सिर्फ इतना बताऊंगा कि वो मुंडेल छावनी वाले टीले के करीब जो इंडियन आर्मी एविएशन का कैंप बना हुआ था वहाँ ग्राउंड स्टाफ में मैकेनिक का काम करता था। उसका फर्जी नाम बशीर भट्ट रख लें। आलमगीर ने बताया कि बशीर भट्ट का ताल्लुक वादी कश्मीर से है, मगर इसके आबाओ अजदाद 100 साल पहले कश्मीर से निकलकर हैदराबाद दक्कन में आबाद हो गए थे। बशीर भट्ट तमिल और तेलुगु दोनों ज़बानें रवानी से बोल लेता था। ऐसा आदमी मेरे लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता था। मैंने आलमगीर से कहा, मेरा ख्याल है कि मैं कल सुबह यहाँ से मुंडेल छावनी की तरफ चल पड़ूंगा। आलमगीर कहने लगा, नहीं, तुम कल सुबह नहीं जा सकोगे। इसकी वजह यह है कि मुझे अपना एक ख़ास आदमी तुम्हारे साथ भेजना होगा जो मुंडेल छावनी तक तुम्हारी रहनुमाई करेगा और तुम्हें बशीर भट्ट से मिलवा देगा। इससे मेरी मुलाकात कल दोपहर के बाद ही हो सकती है। अब प्रोग्राम यूं बनेगा कि मैं कल शाम को अपने ख़ास आदमी को तुम्हारे पास यहाँ भेज दूंगा। वो तुम्हें रात को या सुबह सुबह मुँह अंधेरे यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। वो मुंडेल छावनी वाले जंगल के मुख्तसर रास्ते से वाकिफ़ है। मेरा ख्याल है तुम्हें जंगल का ये सफ़र पैदल चलकर तय करना होगा। फिर कुछ देर बातें करने और मुझे मुंडेल छावनी के बारे में बात ज़रूरी बातें बताने के बाद आलमगीर चला गया। दूसरे रोज़ शाम से ज़रा पहले आलमगीर का ख़ास आदमी, जिसको मैं मुजाहिद के नाम से ही पुकारूंगा, मेरे पास जंगल में पहुंच गया। मुझसे बगलगीर होकर मिला, मेरे पास कैबन के अंदर बैठ गया। मैंने पूछा कि मुंडेल छावनी किस वक्त जाने का प्रोग्राम है। मुजाहिद बोला, हम मुँह अंधेरे निकलें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं जानता हूँ हम दिन के वक्त वहाँ पहुँचेंगे। मैंने पूछा, जंगल में वहाँ तक कितना फासला होगा? इसने जवाब दिया, 20 किलोमीटर है। अगर हमें दरिया में कोई कश्ती मिल गई तो ये फासला इससे भी आधा हो सकता है। बहरहाल हम अगर मुँह अंधेरे रवाना हुए तो कल दोपहर तक या दोपहर के बाद मुंडेल छावनी के कस्बे में पहुँच जाएंगे। जिस तरह मुजाहिद ने कहा वैसे ही हमारा प्रोग्राम तय हो गया। रात हमने वहीं गुजारी। सुबह नमाज के वक्त उस्मान बाबा हमारे लिए नाश्ता और चाय लेकर आ गया। हमने नाश्ता किया, चाय की एक एक प्याली पी और अल्लाह का नाम लेकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।